So I'm happy to be with all of you once again. आज मैं बहुत खुश हूँ आप सबके साथ मिलने के लिए। Last time we saw the main theme of this chapter 2 is verse 3, chapter 2, verse 3, do nothing from selfishness or pride or empty conceit. और पिछले बार हमने दूसरे अध्याय में एक विशेष बात सुनी जो है दूसरा अध्याय का तीसरा वचन, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। That is the root cause of all the problems in our life. जो भी कठिनाइयों का हम सामना करते हैं उसका जड़ यही बात है। We can see that the previous verse, because of selfishness and pride, we can say in the family, in the church, that oneness of mind is not there, same love is not there, unity of spirit is not there, people are not intent on one purpose. और हम देख सकते हैं कि इसी कारण जो स्वार्थ है और झूठी बड़ाई के कारण हमारे परिवार में या कलीसिया में जो है शांति या प्रेम और आत्मा में जो सहभागिता है, करुणा, दया, इन सब चीजों की कमी रहती है। Now, what is the reason for all this disunity? We can say the reason is verse 1. We are not drawing that encouragement from Christ. We are not drawing that consolation of love. That we are not walking in fellowship of spirit, and so on. और ये जो एकता की जो कमी है ये इसीलिए है क्योंकि हम यीशु मसीह से जो है हमें जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है, और इसके कारण शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता, करुणा, दया, इन सब चीजों की कमी हमें दिखाई देती है। We see in verse 3 we have to consider others more important than ourselves. और जैसे तीसरे वचन में लिखा है कि हमें एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना चाहिए। We saw in verse 5 that was the attitude which was in Jesus Christ. और हमने जैसे पांचवें वचन में देखा कि जैसा मसीह यीशु में ये स्वभाव था। We see there was no selfishness, no pride, but he considered others more important. तो इसी तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को बड़ा नहीं समझा, लेकिन दूसरों को पहला स्थान दिया, और इसीलिए उनमें कोई स्वार्थ नहीं था। When the disciples' feet were dirty, he was washing them. They were more important. जब यीशु मसीह ने अपने चेलों का पांव धोया, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने देखा कि वो उनसे बढ़कर है। He did not consider his disciples more spiritual, no, but he considered them more important than himself. उन्होंने ये नहीं देखा कि वो उनसे जो है आत्मिक रूप में बड़े हैं, लेकिन उन्होंने उनको और महत्व दिया, इसीलिए उन्होंने ऐसे किया। When we see he was on the cross, he considers his mother more important. That's why he asked John to look after her. और जब यीशु मसीह क्रूस पे थे तब उन्होंने अपनी माता को भी उन्होंने महत्व दिया, इसीलिए उन्होंने जो है यूहन्ना से कहा कि मेरे माँ का तुम ख्याल रखना। When they gave that wine to drink, he refused to drink because he considered the thief who was hanging on one side more important, so that he could save him. और जब उन्हें दाखरस दिया गया, जब वो प्यासे थे, तब उन्होंने उसका इनकार किया क्योंकि उन्होंने जो दूसरा जो आदमी जो क्रूस पर टंगा हुआ था उनके साथ उन्हें और महत्व दिया। We can see that there was a time in Jesus' life, he, in order to meet that Samaritan woman, actually he was traveling from Judea to Galilee, but he went that longer path where he went through Samaria. We can see that he considered that woman more important. और जब वो
जब यीशु मसीह जो है जो समारिया स्त्री से वो मिले थे, तो वो जूडिया से गलीली जा रहे थे, लेकिन उन्होंने और लंबा रास्ता लिया और वो समारिया से गुजरे ताकि वो उस समारिया स्त्री से वो उनका मुलाकात हो। So, when we read New Testament, we can see the glory of Jesus, as 2 Corinthians 3:18 says, "We with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same images from glory to glory, just as by the Holy Spirit." और जब हम जो है नए नियम को पढ़ते हैं, तब हम मसीह यीशु की महिमा को देख सकते हैं, जैसे कि दूसरा कुरिन्ती 3 अध्याय और उसके 18 वचन में लिखा है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। See, in our daily life, we see terrible amount of selfishness and pride, and there is where we have to see, Lord, I want to see your glory, and I want to be transformed slowly and steadily. जब हम अपने जो दिन ब दिन की जो जिंदगी को देखते हैं, तभी हम हमारी जो स्वार्थ है और हमारे अंदर जो भी घमंड है वो प्रकट होता है, और तब हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु आप मुझे अपने ही स्वरूप में बदलो। We can see that glory of Jesus in the following verses. और जो आने वाले वचन हैं, उसमें हम यीशु मसीह का जो महिमा है उसे देख सकते हैं। Who, although he existed, verse 6, in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but verse 7, emptied himself, taking the form of a bond servant and being made in the likeness of men. और 6वां और 7वां वचन, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। We know that when we read Isaiah chapter 6, Jesus was sitting on the throne, his robe was filling the temple. और हम देख सकते हैं यशाया का 6वां अध्याय में हम देख यीशु मसीह जब जो है वो सिंहासन पे बैठे हुए थे और उनकी जो महिमा उधर दिखाई दिया। Seraphs were covering their feet, their face, and with 2 wings they were flying. They were continuously telling, "Holy, holy, holy, holy is the Lord God Almighty." और जो स्वर्गदूत थे, उन्होंने अपने मुंह को और पैरों को ढककर वो बार-बार ऐसे चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे कि पवित्र है, पवित्र है। He is the greatest person in heaven. Myriads and myriads of angels are worshipping him. वो स्वर्ग में सबसे महान है और लाखों लाखों करोड़ों जो स्वर्गदूत हैं, उनकी जो है आराधना करते हैं। But he thought of a person like me, like you. We are like a vapor. We are like a dust. और उन्होंने हमारे बारे में सोचा, हम जो कुछ भी नहीं हैं, हम सिर्फ एक धूल के समान हैं, फिर भी उन्होंने हमारे बारे में सोचा। So he wanted to make us to his position, to be like him, to enter into fellowship with him. That's a unspeakable amount of love. और वो चाहते थे कि हम उनके साथ संगति में रहे और हमारे उनके साथ संगति हो, और इस प्रकार हमें इस निचले जगह से अपने साथ वो रखना चाहते थे, अपना सहभागी बनाना चाहते थे। तो ये कितना अनोखा प्यार है। We can see in verse 6, even though he was equal to God, he did not regard that equality with God something to be hold on to. और जैसे 6वें वचन में हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। For example, see, as a
husband. I am the head of the home, but I should not hold that position, uh, that it's that importance to myself, but I should be just like Jesus, should be willing to be a slave in everything. जिस प्रकार मैं अपने परिवार में मैं सिर का पदवी मुझे मिला है, लेकिन मैं उसे इस प्रकार मेरे वश में मुझे नहीं रखना चाहिए कि मैं एक दास बनने के लिए, जैसे यीशु मसीह बन गए एक दास, वैसे उसके लिए मैं तैयार ना हूं। All the problem comes because we want to hold on to our position. उस पदवी में हम रहना चाहते हैं और हम उसे ऐसे जकड़ कर पकड़ कर रखना चाहते हैं, इसीलिए सारी जो मुश्किल है पैदा होती है। It's true that we are the head of the home, but Jesus was God when he came to the earth, but he became a slave for us. ये सच है कि मैं अपने परिवार का सर हूं, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को दास के रूप में बनाया। Even though he was God. वो परमेश्वर थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को एक दास के स्वरूप में बनाया। And we can see in verse 7, he emptied himself, or as NKJV says, he made himself of no reputation. और जैसे 7वें वचन में लिखा है कि उन्होंने अपने आप को खाली किया, या वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। See, he called himself Son of Man. That means I'm an ordinary person. और उन्होंने अपने आप को मनुष्य का पुत्र पुकारा, तो वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपने आप को समझा। Even though he could have become like a king, that also would have been a tremendous humiliation. But he did not position himself as a king, but he came right down to our level where he became an ordinary man. वो अपने यीशु मसीह जो है अपने आप को एक राजा के रूप में भी प्रकट कर सकते थे, वो भी उनके लिए एक बहुत नीचा स्तर का पदवी है, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को हमारे समान बिल्कुल भी अपने आप को बहुत ही नीचा कर दिया। Have you heard of anybody in our society who was born in a cowshed? क्या आपने अपने जो सोसाइटी में किसी को ऐसे देखा है जिनका एक गौशाला में उनका जन्म हुआ है? Maybe a poorest person may get born in a street, perhaps, but cowshed is far under that, extremely dirty place. तो जो गरीब लोग हैं उनकी जो पैदाइश शायद जो रास्ते में हो सकता है, कहीं सड़क पर हो सकता है, लेकिन जो गौशाला है वो तो बहुत ही गंदी जगह होती है। You know, we cannot determine where we should be born, but God from heaven, he was looking where his son is going to be born, and he chose a place which not even the poorest person can be born. Such a place he chose. हम में से कोई भी ये बात हम नहीं चुन सकते हैं कि हमारी पैदाइश कहाँ हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे के लिए जो है ऐसे जगह चुनी जो एक गरीब व्यक्ति भी ऐसे जगह में पैदा नहीं होता है। And we can see not only that he became an ordinary man, he went still down and he became a slave for us. और वो सिर्फ एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं आए, उन्होंने उससे भी एक निचला स्तर लिया और अपने आप को एक दास के रूप में उन्होंने प्रकट किया। When we see in John chapter 13 where he washed the feet of his disciples, which was the job of the most lowest caste person's job, that he was ready to do. और जैसे हमने यूहन्ना 13 में भी देखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों का पैर उन्होंने धोया, तो ये ऐसी बात है जो एक बहुत ही निचले स्तर के लोग या निचले दर्जे के लोग करते हैं। And
we can see in verse 8, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. और 8वां वचन, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली. See, there we can see what is the definition for a true humility. तो यहाँ हम देख सकते हैं जो एक नम्र बनने का जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ दिया गया है. See, humility is not to speak in a very low voice, walk with a very low frame of mind. That's not all. That's all just show, and that's not true humility. जैसे कि हम बहुत लोग दिखावा करते हैं, बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं, सर झुकाकर वो चलते हैं, तो इन सब बातों में नम्रता, सच्ची नम्रता नहीं दिखाई देती. वो तो सिर्फ एक दिखावा है. True humility, we can see here, is to be obedient to the point of death, even the death on the cross. तो जो सच्ची नम्रता है वो हम यहाँ 8वें वचन में देख सकते हैं, जहाँ बताया गया है कि वो आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली. See, Jesus bore that cross on the Calvary. He died on Calvary. That was one cross he bore. He also bore a cross where he said no to his will and yes to God's will throughout his life. और यीशु मसीह ने जो कलवरी पर, जो क्रूस पर वो चढ़ाए गए, तब वो उन्होंने जो है क्रूस की मृत्यु उन्होंने सही, लेकिन अपने जीवन भर वो उन्होंने एक और क्रूस उठाया था जहां उन्होंने अपने खुद की इच्छा को इनकार करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया. We cannot follow Jesus on the cross, the physical cross where he died, but we can follow Jesus in that daily cross that he bore for us. हम जो हैं उस जो शारीरिक रूप में जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, उस क्रूस पर तो हम नहीं चढ़ सकते, लेकिन जो उन्होंने अपनी इच्छा को इनकार किया, उस क्रूस पर हम रोज चढ़ सकते हैं. We all face ridicule and humiliation at some point of time in our life. हम सबको जो है किसी प्रकार की घृणा या का सामना करना पड़ता है. You know, when we face such a situation, the self in us erupts. You know, it says, it demands our right, it fights for our reputation. और जब भी ऐसे होता है तो हमारे अंदर से हमारा जो स्वयं जो होता है वो उठ जाता है और अपने अधिकार को मांगता है, और वो हमारी जो घमंड है वो उठकर बाहर आती है. That is the place where I have to be obedient by taking my cross and saying, Lord, instead, Lord, I should have love in my heart to the other person. तो ऐसे परिस्थिति में हमें जो है अंगीकार करना चाहिए कि प्रभु, मैं इस चीज को जगह नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपने आप को नम्र करके जो है इस व्यक्ति से प्रेम करूंगा. For that purpose, only Holy Spirit, the third person of Trinity, has come inside us to help us. He's a helper to help us to live such a life. इसीलिए जो है पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आए हैं कि वो हमारे सहायक हैं कि वो हमें सहायता दे सके इन बातों में. We all know when we are humble, we'll get the greatest gift from God, which is grace of God. जब हम नम्र होते हैं तब परमेश्वर से हमें जो है सबसे बड़ा दान मिलेगा, जो अनुग्रह है. It's by the grace of God we can be an overcomer in our life. और परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम एक विजयी व्यक्ति बन सकते हैं. Now we should know how truly we can be humble.
और अब हमें समझ आना चाहिए कि कैसे हम एक सच्चाई में एक नम्र व्यक्ति बन सकते हैं। It is when we go through situations where we face ridicule and humiliation, as is written here, to become obedient to the point of death, even death on the cross. That means saying no to my will, yes to God's will. जब लोग हमारी निंदा करते हैं, हमसे घृणा करते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में जब हम, जैसे 8वें वचन में लिखा है कि आज्ञाकारी रहकर हम मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी सहने के लिए हम तैयार हो जाएं। Say, for example, when we face ridicule and humiliation, we can also keep quiet. और जब भी हम लोग हमारी अपमान करते हैं और हाँ, घृणा करते हैं, तब हम चुप रह सकते हैं। But inside there can be boiling. Things can be boiling inside. लेकिन हमारे अंदर जो है गुस्सा ऐसे उबल रहा होगा। That is not walking the way of the cross. तो ये जो है आज्ञाकारी बनकर यीशु के रास्ते पर हम नहीं चल रहे, ऐसा कर। But there is a word in I think Proverbs 15:4. A soothing tongue is a tree of life. और हम जो है नीति वचन 15 का 4 चौथे वचन में हम देख सकते हैं, नीति वचन 15 का चौथा वचन, जहां ऐसे लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। See, when we face ridicule, to say a soothing word, that is we really need the help of the Holy Spirit to come to that level. तो जब लोग हमारी अपमान करते हैं, ऐसे परिस्थिति में एक शांति देने वाली अगर वचन हमें बोलना है, तो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के सहायता से हम वो कर पाएंगे। And when we go that path, that is true humility. और जब हम उस रास्ते पर चलेंगे, तो वही सच्ची नम्रता है। Such people will get abundance grace. तो ऐसे लोगों को जो है परिपूर्णता में जो अनुग्रह मिलेगा। Now we can see that the theme of this portion is to do nothing from selfishness and empty conceit. और इस जो है इस अध्याय का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमें कुछ भी जो झूठी बड़ाई या विरोध के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। And this selfishness and pride can go only when we are controlled by the love of Christ. और ये जो स्वार्थता है हमारे अंदर, जो घमंड है, वो सिर्फ और सिर्फ तब जाएगा, हमसे, हमारे अंदर से निकलेगा, जब हमारे अंदर परमेश्वर यीशु मसीह का जो प्रेम है हमारे अंदर भर जाएगा। We can read in 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. जिस प्रकार दूसरी कुरिन्थियों का 5वां अध्याय और 14वें वचन में लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा, तो सब मर गए। We have to see the amount of the way in which Jesus loved us, how he humbled himself, how he became of no reputation, how he became a slave and a criminal. And as we see that glory of Jesus, we get liberation from this selfish attitude. और हमें ऐसा प्रकटीकरण मिलने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह ने हमसे कितना प्यार किया और उन्होंने अपने आप को एक अपराधी बनाया, एक दास के स्वरूप में उन्होंने अपने आप को बना दिया, ताकि हमें जो है हम बच सकें। I was thinking of an example of
one life incident of William Carey. तो मैं एक उदाहरण के लिए एक विलियम कैरी करके एक मिशनरी थे, उनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। He came from England to Calcutta, India, to become a missionary. वो इंग्लैंड से कलकत्ता में आए कि वो एक मिशनरी बनकर यहाँ काम करें। After some years, he was a professor in a college. और कुछ सालों बाद वो जो है एक प्रोफेसर थे एक कॉलेज में। One day, in a meeting of many high English officials, he was also there. Many other officials were there. और वहाँ जब वो थे तो एक जो अंग्रेजों का जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनके साथ उनका एक मीटिंग हुआ। And one official wanted to humiliate William Carey. और उनमें से जो एक व्यक्ति एक ऑफिसर जो था वो विलियम कैरी को अपमानित करना चाहते थे। He said William Carey was a person who was making shoe. I heard that William Carey was a person who was making shoe in England. तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि विलियम कैरी जो है वो जो जूते बनाने वाला व्यक्ति है। You know what happened? William Carey stood up and said, "See, I was not a person who was making shoe. I was a person who was stitching shoe." तो उन्होंने कहा कि मैं एक जो जूता बनाने वाला नहीं हूँ, मैं उसे जूते को सिलने वाला व्यक्ति हूँ। Just imagine when one person ridiculed him, instead of reacting in a angry way, he humbled himself still more and said, I was not even that. I was doing a much lower job. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे विलियम कैरी ने जब उस व्यक्ति ने उनका अपमान किया तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को जो उस व्यक्ति ने बताया उससे भी कम स्तर पर उन्होंने दिखाया कि मैं सिर्फ एक जूता बनाने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उसको सिलता था। See, that's a great example for all of us. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उदाहरण है। You can see in verse 9, therefore also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those which are in heaven and on earth and under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. 9 to 11. और 9वें वचन से 11वें वचन तक हम पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। So we can see verse 9 is written, therefore, because he humbled himself like this to a tremendous extent, God exalted him. और 9वें वचन में हम देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है इस कारण। तो किस कारण? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को इस स्तर तक उन्होंने अपने आप को छोटा किया, इसीलिए। See, whenever we think of getting exalted, we think that exalted means to a great position or a great job or becoming a elder or something. That is not exaltation. True exaltation is nearness to Jesus Christ. और हम कई बार सोचते हैं कि जो है जब हम कोई जो है एल्डर बन जाते हैं या कोई अच्छा हमें एक काम हमें मिल जाएगा तो हम बड़े हो जाएंगे, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि जो महानता उसी में है कि हम यीशु मसीह के नजदीक हो। I want to give you a small demonstration which I've seen. Just think of this pen. मैं एक चीज आप
सबको दिखाना चाहता हूँ। ये एक कलम This, है। imagine this is a picture of our earthly life. तो ये हमारे जो शारीरिक जीवन का एक उदाहरण है। See, there are many people will start from the middle. There are many people who, in each situation, they're climbing. They're exalting themselves, exalting the bus, exalting. There are some people who are all the time exalting themselves and trying to climb upon others. और जैसे उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति या कुछ लोग जो हैं, जैसे बीच में हैं, इस कलम के बीच में हैं, और वो अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं और किसी के ऊपर वो जाना चाहते हैं, किसी से के ऊपर अपना स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। There are some others who, very few, who want to humble themselves. They want to go down, want to go down. और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने आप को उस बीच के स्तर से अपने आप को कम करते हैं। If you look at Jesus, he humbled himself right to the bottom. और जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो उन्होंने अपने आप को एकदम नीचे स्थान तक उन्होंने अपने आप को कर दिया। Some humbled themselves slightly, some little more extent, some still more. और कुछ लोगों ने अपने आप को थोड़ा कम किया और कुछ लोगों ने और थोड़ा कम किया। तो इस प्रकार से अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग रूप से अपने आप को कर दिया। But when we reach heaven, you know what happens? Just like this pen will be put the other way around. जब हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे तो ये जो कलम जो है वो उल्टा हो जाएगा। We have to remember all those who exalted themselves. They will go, their position is in hell. तो जिन्होंने भी अपने आप को ऊंचा किया, उनका स्थान जो है नरक में होगा। But who humbled themselves to the most, to Jesus, he is at the top. और जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया, और जिन लोगों ने अपने आप को नम्र किया और नीचा किया, वो ऊपर चले जाएंगे। Jesus humbled himself to the most, so he is right at top. और यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र कर एकदम नीचे स्थान में किया, इसीलिए आज वो सबसे ऊंचे स्थान पर हैं। Those who humble themselves slightly, they are far away from Jesus. और जिन्होंने अपने आप को थोड़ा नम्र किया, वो यीशु मसीह से बहुत दूर हैं। Those who humble themselves little more, they are slightly more nearer to Jesus. और जिन्होंने और थोड़ा अपने आप को नम्र किया, वो यीशु के थोड़ी और करीब हैं। Those who are humble themselves little more, they are still nearer to Jesus. और जिन्होंने अपने आप को और अधिक नम्र बनाया, वो यीशु के और भी करीब है। This is a very good picture of what's going to happen in heaven. तो ये एक ऐसा चित्र है जो हमें दिखाता है कि स्वर्ग में क्या होने वाला है। You know, the greatest thing we can ever hope in heaven is to be closer to Jesus Christ. और हमारी जो है सबसे जो दिल की इच्छा ये होनी चाहिए कि हम यीशु मसीह के करीब हो। The only way to draw closer to him on earth and in heaven is to go down, voluntarily go down. और अपनी स्वयं इच्छा से अगर हम अपने आप को नम्र करेंगे, तो वही एक रास्ता है कि हम यीशु के निकट हो जाएंगे। The word used there is humble himself, humble themselves. It's voluntarily I go down. तो यहाँ ऐसा लिखा है कि अपने आप को नम्र करना, तो इसका ये मतलब है कि स्वयं इच्छा से हम अपने आप को कम करते हैं या नम्र करते हैं। Sometimes God humiliates us in order to make us humble. That's another thing. But when we voluntarily go down, that is to really take the example of Jesus Christ. और
कई बार हमें परमेश्वर ही अपमानित कर देते हैं, वो एक दूसरी बात है। लेकिन जब हम अपनी स्व इच्छा से जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, तब हम यीशु मसीह के समान हो जाते हैं। We can see here what is going to happen in one day. Every knee is going to bow down before Jesus, both in heaven, on earth, and under the earth. Everybody is going to confess with their tongue that Jesus is Lord, to the glory of God. और हम यहाँ देख सकते हैं कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे ये सब जो यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर लेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। But it is a privilege of all born again Christians to do that today, bowing before Him, acknowledging Him as Lord of our life. तो लेकिन ये हम सबका एक सौभाग्य है कि हम यहाँ अभी ये हम कर सकते हैं कि हम अपने आप को नम्र करें और यीशु के सामने हम अपने आप को कुछ नहीं समझे और अपने आप को नम्र करें। Before closing, I just want to tell one story and close. और ये खत्म करने से पहले मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ आप सबको। One foreigner came to a village एक विदेशी एक गांव में आया and he went to the river nearby in order to catch fish. और वो एक नदी के पास गया। No, he was wearing a coat and a hat, a big hat, and he was putting his fishing rod on the river, trying to catch fish. और वो अपने जो है एक कोट और सर पर एक टोपी बड़ा टोपी पहना हुआ था और वो मछली पकड़ने के लिए एक छड़ी लेकर उधर बैठा था। He sat there for almost 45 minutes. He could not catch even one. और वो 45 मिनट वहां बैठा था लेकिन उसे एक भी मच्छी नहीं मिला। 20 feet to the other side, a small boy was catching fish after fish. His basket is full of fishes. और उससे थोड़ा दूर एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ था और उसने एक करके उसने बहुत सारी मच्छी पकड़े और उसने अपने टोकरी में इन सबको डाल दिया था। He was wondering why I can't get fish. Just nearby, that boy is sitting. His basket is full of fishes. और वो सोच रहा था कि मुझे क्यों मछली नहीं मिल रही जब इस छोटे लड़के को इतना मछली मिल रहा है। He went to that boy and asked, "What is the secret of catching fish?" और उसने उस छोटे लड़के से पूछा कि मछली पकड़ने का रहस्य क्या है। Sam, you're mute. Oh, sorry. It's okay now. I can hear it now. Yes, brother. So he said that, see, you are wearing a coat and a hat and sitting, and all the fishes are seeing you and running away. तो उस छोटे लड़के ने कहा कि कि आपने तो एक कोट और ये जो टोपी पहनकर वो आप बैठे हैं तो आपको देखकर ये मछली सब भाग रहे हैं। Just see, I'm not wearing much clothes. I'm almost hiding behind this rock, and that's why I could catch so many fishes. तो उसने कहा कि मैंने तो ज्यादा कपड़े नहीं पहने हैं और मैं इस चट्टान के पीछे छिपकर मैं इन मछलियों को दिखाई नहीं देता हूँ। See, that is a great lesson for our Christian life. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है हमारी It's when we hide ourselves that we really become fruitful in our Christian life. जब हम अपने आप को छिपाते हैं तभी हम क्रिस्ती जीवन में फलवंत हो सकते हैं। If we display ourselves, show ourselves in every area, that is the way we can become fruitless in our Christian life. और अगर हम अपने आप
को खुद को दर्शाते हैं सब जगह में, तो इस प्रकार हम जो है निष्फल हो जाते हैं। So we'll close here. Thank you, sister, for wonderful translation. Thank you for listening. May God help us.